नाम क्या है बेटा आपका? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है अल्पना सिंगला। डॉक्टर सिंगला आप कहाँ से हैं? मुंबई से। Thank you, sir. Thank you. Mumbai, which place? मैं मुंबई में So you're from which college? सेना मेडिकल कॉलेज। So तुम जैसे you're attempting for this NEET? Yes. I'm in my final year, but I just came for a revision. Oh, so you will be appearing for the first exam you will appear is for Final and previous exams. 2025 में attempt No, करोगे. no, it's in January. So will you be applicable for INI-CT November next year? Not sure. So फिर तुम NEET ही I दोगे. think so, yes. NEET दोगे. So तुम I'll be my internship in November next so year. तुम जैसे अभी फाइनल में पढ़ रहे हो तो how do you divide your day? कैसे पढ़ते हो तुम? क्या करते हो? It varies actually depending on how much what my progress in the year is. Like I start with the first round of the subjects and understanding the concepts, and after that I go on to read the books. And after Right. that So I keep books revising मतलब it. जैसे मेडिसिन पढ़नी है तुम क्या पढ़ते हो? I've used various sources. Maybe I stick to my coaching notes. टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते? Textbooks depends on parts. Okay. Then सर्जरी में? I mainly refer to the notes and the different books. So how is your typical day composed of? My typical day, so initially we used to have postings in our college. So in the morning we have posting, then we have some lectures. In the evening I take some time off, and then before going to bed I revise stuff and then go to sleep. And again the next morning postings. Do you do MCQs also? A little bit now, but not full-fledged. I have not started it full-fledged completely in a final year. Good. अब इनसे बात करते हैं. आपका नाम बेटा? Hello sir, Dr. Nikhil. निखिल पिल्लई. Yes sir. तुम कहाँ से हो? Mumbai. अच्छा तुम मुंबई से हो. You've come here for this class. No, I'm staying in Kolkata. Fantastic. So you are an intern, post-intern, finally? Post-intern. So you are attempting NEET this time. Yes sir. How is your typical day composed of? How do you divide your day? What time do you get up in the morning? Sir, today I woke up at 4:30 a.m. I mean, normally. Normally yeah, around 5:30. उठ जाते हो? Good. फिर क्या करते हो? And I solve some MCQs. Starting MCQ से करते हो? Okay. And फिर PTR देख लो थोड़ा जो है फिर उसके बाद I'm following your mission meet also. तो फिर उसका अगर कोई रिविजन वीडियो होगा तो वो देख लेता हूँ. And then उसके बाद वापस से MCQs. So you start with MCQs, do some BTR, then the mission video if relevant, and then you again go for? MCQs at night. Fantastic. And then छोटी copy. छोटी कॉपी बनाते हो. You made your own one? Yes. उसमें क्या नोट करते हो तुम? सर पीटीआर में जैसे कि बहुत सारे जैसे मैम बॉक्सेस देती है तो वो याद नहीं रह पाता है तो वो छोटी कॉपी में डाल देता हूँ या फिर जैसे अगर सर ने कुछ कॉन्सेप्ट बताया है तो वो लिख देता हूँ छोटे. So आपने जैसे ये कंसाइज करना शुरू किया कुछ भी चीज़ें, हाँ सर. कब से करा ये जो आप बनाते हो? अभी आईआईसी की दिया तो तब से मैंने स्टार्ट किया. उसके बाद उससे पहले? उससे पहले से So did you read this small copy before your exam? आईआईसी से पहले मतलब एवरीडे रन करा था तो वही मिस्टेक लगा मुझे कि एवरीडे नहीं कर रहा हूँ मैं रीड, बट अभी तो रीड कर रहा हूँ. Fantastic. चलो उनसे पूछते हैं. आपका नाम बेटा? जय कृष्णा. जय कृष्णा. तुमने जय भी लगाया हुआ है, कृष्णा भी, साथ में पूजा हो जाती है पूरी. सो यू आर एन इंटर्न, पोस्ट इंटर्न, फाइनल ईयर. सो यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस नीट. आप क्या करते हो बेटा एक दिन में? जैसे ही डज एमसीक्यू, देन ही वॉचेस सम वीडियो, देन सम मोर वीडियोस एंड देन एमसीक्यूज टू द एंड. सर जैसे मैंने नीट पीजी ज्वाइन किया था लाइव सेशन वाला तो शाम में वो चलता था सर और उसके बाद सुबह में है उसका एमसीक्यू जो टॉपिक होता था और फिर सर पीटीआर उसके साथ साथ. ओके. सो तुम इवनिंग से स्टार्ट किया डे, मतलब व्हाट यू डू इन द इवनिंग, अगले दिन सुबह उसको रिवाइज करते हो नेक्स्ट डे से पहले. यस सर. राइट. Are you also making some small book to note important things? यस सर. फोटो कॉपी से सर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन सम छोटी कॉपी. बड़ा रजिस्टर है. ठीक है.
ज़्यादा हो जाता है। ठीक है मैम, आगे फर्स्ट वन। थैंक यू बेटा। मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? सना, तुम्हारे हिसाब से यू आर एन इंटर्न, पोस्ट इंटर्न? तुम्हारे हिसाब से एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ तुम्हें क्या लगती है? एनाटमी। चलो आज तो एनाटमी का लेक्चर, राइट, फैंटास्टिक। सो डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, आई होप सो विल हेल्प यू, बट आर यू एबल टू स्टडी एवरी डे? That's a good thing. How often do you take breaks? Yeah, but you know, we were talking to a lot of people who clear exams, Sana, and they all had one thing in common: their breaks were always planned. So मैंने common देखा है in many colleges. They would keep half day for a grand test every week, and the other half the same day they will keep for themselves, not do anything. So in that day they learn. So for 6.5 days they're studying, and half day they break. So on an average, how many hours are you able to study at this stage? 6 to 7. Are you working somewhere? ठीक है, नेक्स्ट कॉर्नर में आशीष आपके साथ जो है, बिल्कुल मैम कॉर्नर में। थैंक यू सना। व्हाट्स योर नेम? Good morning, sir. My name is Sunidhi, Dr. Sunidhi. ठीक है, सुनिधि बताओ। यू आर एन इंटर्न, पोस्ट इंटर्न? Post intern. ऑलराइट, सो यू आर अपीयरिंग फॉर नीट। Yes, sir. ऑलराइट, सो यू अटेंडेड 2 days लेक्चर, पूरा अटेंड किया था? No, sir. कब तक तुम्हारी क्षमता थी जो अटेंड कर पाए? Sir, actually, I live in the PG now, so there is timing issues. Okay, so what time did you leave from here? I left at 9:50. And morning started at 9 o'clock. 9 बजे से 9 बजे तक पढ़ा? Yes, sir. नॉर्मली जब तुम घर में पढ़ते हो, क्या तुम इतना पढ़ पाते हो? Sir, I take breaks. Like I can sit for 2 hours max, like with full concentration. Then I take 15-20 minutes break. और एग्जाम में कितने घंटे बैठना होता है? 3 hours. यहाँ प्रॉब्लम होती है। राइट, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सीन इन माई करियर, वो पहली बार एग्जाम में ही बैठते हैं 3-3.5 घंटे के लिए। सो आवर बॉडी इज़ नॉट ट्यून टू इट। हम रिहर्सल घर में नहीं करते। सो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि ग्रैंड टेस्ट कब देना चाहिए, कब। फ्रीक्वेंसी सब पूछते हैं कितनी बार, पर ये बहुत कम लोग पूछते हैं कब देना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग ग्रैंड टेस्ट आपको उसी टाइम पे देना चाहिए जब उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का टाइम हो। अगर 10 to 1:30 नीट का एग्ज़ाम है इन द मॉर्निंग, सो आपका ग्रैंड टेस्ट भी 10 to 1:30 होना चाहिए। सेकंड होता है क्या ग्रैंड टेस्ट एक बार में देना चाहिए? सो आंसर है ग्रैंड टेस्ट एक बार में देना चाहिए। थर्ड होता है कि ग्रैंड टेस्ट अगर मैंने आज दिया तो उसका एनालिसिस आज करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए? इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका कोई वजूद रहता नहीं है। ऑलराइट, डू यू डू MCQs एवरी डे सुनिधि? Yes, sir. एंड हाउ मेनी डू यू डू एवरी डे? Sir, 50-50, like 50 questions. Then I review. Then like I study. Then 50 questions. Part. Do you study one subject in a day, or do you mix up the subjects? So mix up like long and short subjects. So how do you decide which MCQ to do? Same subject or multiple questions? Sir, like जो week like part है मेरा, तो उसका मैं solve करती हूँ. ठीक है, गुड। नेक्स्ट कॉर्नर में जो बैठे ना उधर, आपका नाम बेटा? साहिल सर। साहिल। साहिल कहाँ से हो बेटा आप? सर कैथल, हरियाणा। Yeah, I know Kaithal, yeah, obviously I know, right. So you are an intern, final year, post intern? पोस्ट इंटर्न सर। All right, so you are appearing for this NEET. यस सर। Did you give INI-CT as well? यस सर। What were the shortcomings you felt in your preparation work? Sir, I felt I didn't have enough MCQ practice and problem was concising the subject. So concise नहीं हुआ तो revise नहीं हुआ. Yes sir. So the most of the people struggle with revision. आपने दोनों दिन पूरी क्लास अटेंड करी? Sir, मतलब half hour पहले जिसकी half hour पहले निकल गए थे। So normally आप घर में इतनी देर पढ़ पाते हो? sir. ऐसा क्यों? Sir, actually घर पे मतलब 6-7 hours तक चली जाती है सीटिंग, उसके बाद फिर fatigue आना start हो जाता है। मैं यहाँ पे नहीं आया। क्या फ़र्क था?
एक्चुअली सर एक तो एनर्जी होती है जो सराउंडिंग एनर्जी होती है उसका मेरे को डिफरेंस लगा। घर पे अकेले पढ़ने में थोड़ा वो लगता है, यहाँ पे लाइक सब बैठे तो मोटिवेशन रहती है थोड़ा लंबे टाइम तक बैठने की। And when you were nearing INICT, were you able to maintain the tempo, or there was more of anxiety? No sir, I was able to maintain the tempo. Fantastic. You should do the same thing for NEET. Thank you sir. Right? मैंने ये देखा है that if you miss out on a day during this preparation, you almost become zero. So you should not lose a day. Means अगर आपने एक दिन खो दिया तो फिर से आपको restart करना पड़ता है. It's like churning the machine. Machine बंद हो गई फिर से start हो गई. And you know, if you look at the propulsion of rocket, कुछ चेंज किया क्या माइक में? सब ठीक है? If you look at the propulsion of rocket, right, 90% energy rocket के start होने में लगती है, और अगर वो चल पड़े तो आप उस momentum से ही बहुत कुछ कर पाते हैं. You know, in entrance exam, it's extremely important that हम एक momentum maintain करें. अलग-अलग variation देखे हमने. We saw that a person can start with MCQs. You saw that a person can start with revision of what he did last day. You know, but what I believe is more important. You can tailor-make your plan. It's no issues. But what I feel is, जो बनाया है ना फिर उसको change नहीं करना चाहिए. अगर आपने सोचा है कि मैं पहले दिन में उठ के important topics पढ़ूंगा, फिर उसके MCQs करूंगा, फिर end में revise करूंगा, अगर आपने ये सोचा है, all right, then next 3.5 months आपका focus सिर्फ इस पे होना चाहिए. आपका focus इसके around जाना ही नहीं चाहिए. This is what I believe. So कल जैसे मैंने आपसे बात की थी ना कि ध्यान देना, right? So I just gave you an example. It's very very important कि हम लोग जो है जो भी हम पढ़ रहे हैं, right, उसके ऊपर बहुत ध्यान दें. मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये जो गेम है ना, ये जो पर्टिकुलर गेम है आपका so called as entrance exams. डॉक्टर श्रीकांत सर को वेलकम करेंगे हम सब. How are you? आज तो पर चुके Please come. आजा. मैं इधर बैठूं, बात कर रहा हूँ मैं. आजा. So now we have two teachers to talk. So when I was starting my preparation, right, I was told a very simple thing by my teacher. Okay, so he told me this, that majority of the questions in India, like this is question number 1, they will have 4 options. Majority, right? And majority of the students, they have to choose an answer between the 4. So supposedly, right, हमारे को इन चारों में से आंसर नहीं पता और हमें गेस करना है. So हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है 25%, 1 out of the 4. बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, राइट, ध्यान दें, सो एक ऑप्शन ऐसा जरूर होता है जो चीख के चिल्ला रहा होता है कि मैं तो आंसर नहीं हूं भाई. वो बोल रहा होता है कि भाई सुनो मेरी बात, मतलब वो आपको पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मसल ऑफ थंब और इज द मसल ऑफ थंब, और उसमें हेलुसिस लिखा होगा पॉलिसिस की जगह. तो वो कह रहा होगा कि भाई मैं तो नहीं हूं. एक पक्का होगा, मतलब कोई भी एंट्रेंस हो, वेदर इट्स INICT, FMG और NEET, this is universal that out of the 4, 1 option will not be an answer. It's quite obvious, it goes without saying. उसको रूल आउट करना आसान होता है. So सबसे पहले तो आप 4 में से वो ढूंढो जो हो नहीं सकता. तो मान लेते हैं कि वो ऑप्शन डी था. अब अगर आप 3 में से गेस करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बिना मेहनत करे सीधे 33% हो गई. इसमें आपने कुछ करा नहीं है, आपने बड़ा ऑब्वियस ढूंढा. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोग ना क्वेश्चन पढ़ के हार मान जाते हैं कि हमें ये नहीं आता, और वो अगले 45 सेकेंड जो हर क्वेश्चन के लिए इंडिया में मिलते हैं, ये मान के चल रहे होते हैं कि गेम यहाँ खत्म हो चुका है. बट जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है.
वो उन ऑप्शंस को देखते रहते हैं और उसमें से आंसर निकालने की बात करते हैं, बिकॉज ये कला है. इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज. अगर नॉलेज होता तो यूनिवर्सिटी टॉपर्स टॉप करते, पर मैं तो कई साल देखता हूँ यूनिवर्सिटी टॉपर 8-8, 10-10 साल तक क्लियर नहीं कर पाते एंट्रेंस एग्जाम. अगर ये नॉलेज का गेम होता तो सप्ली होल्डर्स कभी टॉप नहीं करते. मैं तो कई बार देखता हूँ सप्ली होल्डर्स खूब ज़्यादा टॉप करते हैं एग्जाम्स. हमारे बैच में ही से इतने सारे लोग निकल के आते हैं बीच में से, जो हमने सोचा नहीं था कि वो रैंक 1, 2, 3 लेके आ जाएंगे. क्योंकि ये कला है, और कला किसी की गुलाम नहीं होती. जो उसको सीख जाता है वो उसका मास्टर बन सकता है. ऑलराइट, फिर अब 3 ऑप्शन बचे. यहाँ आती है एक बेसिक नॉलेज. बेसिक नॉलेज कहती है कि आप हर सब्जेक्ट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो. सबसे इम्पॉर्टेंट. सो आई ऑलवेज से, if you are average in 19 subjects, you can be rank 1. If you try to be good in one, you will never clear entrance exams. So अगर आपको एवरेज आता है, जैसे आपको बुक्स दी हमने क्योंकि रिवीजन की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में एवरेज नॉलेज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 95% ऑफ क्वेश्चन में से आप एक और ऑप्शन को रूल आउट कर पाओगे. सो अगर आपने एक और ऑप्शन को रूल आउट कर दिया, लेट्स अज्यूम, और अगर आप दो ऑप्शन तक पहुंच गए और ऐसा आपने मैक्सिमम क्वेश्चन में किया, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा. बिकॉज उन दो में से सक्सेस 50% है, और अगर एक और रूल आउट हो गया तो कितनी होगी सक्सेस? एक और रूल आउट हो गया तो कितनी होगी सक्सेस मैडम? 100%. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप देखिए, एंट्रेंस इज नेवर एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन. अगर सिलेक्शन का एग्जाम होता तो ज़्यादा लोग सिलेक्ट होते. इट इज़ एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, बिकॉज मेजॉरिटी रिजेक्ट होती है. 97% लोग रिजेक्ट होते हैं. और MCQ में भी सेम चीज़ है. रिजेक्ट करते जाओ ऑप्शंस, जो बचेगा वही आंसर बचेगा. तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. रूल ऑफ एक्सक्लूजन इज ऑलवेज बेटर. जैसे ये MCQs है, राइट? सेम इस अंत में 3 महीने में आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ से हटाना है. जैसे आपके फ़ोन्स होंगे ना, उसमें बहुत सारे ऐप होंगे जो आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे. ऐसे ही आपको बहुत कम लोगों के लिए अवेलेबल रहना है. कोई आपसे बात करे, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, उसकी नहीं. और आपको किसी से बात नहीं करनी, ये आपको पता होना चाहिए. बिकॉज इस टाइम पे आपके दिमाग में 24 घंटे यही चलना चाहिए, राइट, कि मुझे एंट्रेंस कैसे क्लियर करना है. सो मैंने ना पिछले बैच में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन था, ये जैसे डॉक्टर श्रीकांत सर हैं, ही इज यंग, टैलेंटेड, एनर्जेटिक, एक्सपीरियंस टीचर, राइट. सो जैसे मैं उनको बोलूं, सर मैं आपको 86,400 रुपीज़ देता हूं, तो आप क्या करेंगे, है ना? तो मैं सर का आंसर सुनना चाहता हूँ. ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट. ही जस्ट वॉकड इन. ये रायपुर से कल रात को 11 बजे आए थे, जब आपकी क्लास खत्म नहीं हुई थी, और दिल्ली की सर्दी में आए हैं. सो श्रीकांत सर, 86,400 रुपीज़ आपको इनिशियली ऑन द टेबल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? वाइफ को बताऊंगा और बैंक में डाल दूंगा. ऑलराइट. सो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, या जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो कभी भी उस पैसे को तुरंत खर्च नहीं करेंगे. दिस इज़ अ कॉमन आंसर. मैम आप क्या करोगे? मैम से पूछो. मैम को माइक दे दो आशीष, मैम का आंसर सुनते हैं. इनिशियली आपको स्टैट 86,400 इन्वेस्ट कर दूंगी किस चीज़ में? SIP म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड्स. FD कर दूंगी. मैम, आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? सर पहले क्यों मिल रही है चीज़ें? क्यों मिल रहा है ऐसे? क्या मेरे को क्यों मिल रही है? सबको मिलता है, सबको मिलता है, हर रोज मिलता है. सर अभी तक 24 आवर्स के नंबर ऑफ सेकंड्स हैं जो हम सबको रोज मिलते हैं, और हम इनका कैसे खर्च करते हैं वो डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाते हैं. कल का टॉपिक का ध्यान रखना, आज का टॉपिक है बचाना.
तुमने ये बचाया अगर हर पल, मैं वादा करता हूँ अगले 50 साल ये तुम्हें बचाएगा. सो माई ग्रैंड मदर हु वाज अ टीचर यूज्ड टू टेल मी वन थिंग, बेटा समय की कीमत करना, क्योंकि जो समय की कीमत नहीं करता फिर समय उसकी कीमत नहीं करता. राइट. सो अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम हम खुद लाएगा. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड इट विल डिपेंड अपॉन हाउ यू यूज़ इट. सो मैडम, सबको मिलता है, हम सब इस कमरे में राइट उस ऊपर वाले के लिए बराबर हैं, इसलिए उसने सबके हिस्से बराबर समय बांटा. उसके बाद हम उसका क्या करते हैं हमारे ऊपर है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. योर टैलेंट, आप डॉक्टर हैं तो आप टैलेंटेड हैं, is God's gift to you. Your talent is God's gift to you. What you do out of it is your gift to God. So make sure that you value what God has given you. अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आ रही है, अगर आप सुबह उठ के यहाँ बैठ पाए हैं, अगर आप इस कमरे में बैठना अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो फिर ये डाउट मत करिएगा कि भगवान ने आपको बहुत कुछ नहीं दिया, भरपूर दिया है. बिकॉज मेजॉरिटी दुनिया इस कमरे में नहीं आ पाती है, अफोर्ड नहीं कर पाती है, सुबह उठ के यहाँ पहुँच नहीं पाती. तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप कहीं भी पहुँच सकते हो. ऑलराइट. सो कल हमने क्या सीखा? बजा दो ताली यार, इतना दुखी क्यों हो रहा है? कल हमने सीखा ध्यान रखना, आज हमने सीखा बचाना. ऑलराइट. सो अब आपको आज you had phenomenal 2 days and we are so proud of you that majority of you stayed till 11:20 last night. Please अपने लिए ताली बजाओ, pat on your back, right? And we have Dr. Shrikant. He is a phenomenal teacher, very, very committed towards the students. You know, आप इनको कभी भी बोलो कि डॉक्टर श्रीकांत सर दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू इन सेरेबेलम, इनका आंसर है हाँ सर करेंगे ना. यहाँ रुकते नहीं हैं. ही विल कम विद मोर आइडियाज़ टू कंट्रीब्यूट मोर. एट हिज स्टेज विद हिज फेम ही इज स्टिल रेडी टू कमिट 100%. तो मैं चाहता हूँ कि आप आज के दिन की बहुत वैल्यू करें. और जैसे कुछ लोगों ने बोला एनाटमी इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू ट्रैक. सो आई विश दैट कल सुबह जब मैं आपसे मिलूँ सो आप बोलें कि अब हम एनाटमी में कॉन्फिडेंट हैं. एक चीज़ और बतानी थी, मतलब बुरा नहीं मानना. टुमारो मॉर्निंग वी विल स्टार्ट एट 8 AM. ओके, ऑर्थोपेडिक्स विल स्टार्ट एट 8 AM. सो बिकॉज जैनब ने मुझे बोला है कि वो 2:30 बजे चाहती है मैं कमरे से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि वो रेडियोलॉजी पढ़ाएगी. तो 2:30 बजे तभी निकल सकता हूँ जब मैं 8 बजे शुरू करूँ. तुम तो अभी से डर गई बेटा, सोचो कल सुबह कैसा लगेगा तुम्हें, है ना. एंड we will be following the sequence of the quick revision notes. So अपने quick revision notes लेके आना ऑर्थो में. ऑलराइट. देखो मेरा एम बहुत सिंपल है. जो भी मुझे 5-6 घंटे सेरेबेलम अकेडमी ने दिए हैं, खुश नसीबी से कल आप लोगों को, मेरे को क्योंकि कम घंटे मिले हैं ना, तो मैं यहाँ पे आके भड़ास निकालता हूँ रोज़ सुबह आके. समझ रहे हो ना कि मैं मौका मिला नहीं, ड्यूरेशन ऑफिशियली मिल नहीं, तो तुमसे पहले ही मिलने आ जाता हूँ. राइट. मेरा एम ये सिर्फ होगा कि जो ऑर्थोपेडिक से क्वेश्चन आए उनका बेस मैं आपको समझा दूँ. ऑलराइट. ताकि एग्जाम में एटलीस्ट ऑर्थो आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े. सो ओवर टू डॉक्टर श्रीकांत सर. मे यू हैव अ ग्रेट डे सर. एंजॉय योरसेल्फ. बाय बाय. थैंक यू. Mnemonics, fun, story, 3-dimensional anatomy, the song, the drama, your family, yes, girlfriend, boyfriend, everything will come. आपको बेटा वो attachment हो जाएगा. Only one thing, I am going to teach with this workbook. What you are having, yes, this is better. So whatever we are going to do, that is our workbook. Okay, this annotated file, anatomy, quick revision, you all having. तो बेटा एग्जैक्टली मैं ये फॉलो करने जा रहा हूँ. बट यस, व्हाट इज हैपनिंग, दिस वर्कबुक टेक्स द अप्रॉक्सिमेटली 14 आवर्स. तो इसमें तो हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं. थोड़ा सा एक कुछ टाइमलाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ. द फर्स्ट ब्रेक नियर द 11:30, 15 मिनट ब्रेक. देन आवर लंच टाइम 2 PM, 2 to 30, बिकॉज कैंटीन इज हियर, हमको तुरंत आना है. ओके. एंड देन नेक्स्ट ब्रेक अप्रॉक्सिमेटली 4:30 PM. फिर उसके बाद अगर आपका साथ रहा तो हम कंटिन्यू 9 बजे तक लेंगे, अदरवाइज शाम को 7.